नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमृतसर की इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मोहाली एयरपोर्ट पर शिफ्ट नहीं करने की करेंगे अपील, कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। आम आदमी पार्टी के सीनियर कौमी लीडर कुमार विश्वास का शहर वासियों की तरफ से फूंका गया पुतला। अमेरिका में सिख व्यक्ति पर हुए हमले की सिख कौम ने की कड़े शब्दों में निंदा। अब खबरें विस्तार से। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इस बीच आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर स्थित गुरु रामदास एयरपोर्ट पर एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह जल्द ही विमानन विभाग के केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे कि अमृतसर के एयरपोर्ट से सीधी इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की जाएं, ना कि वाया दिल्ली। इसके अलावा वह मोहाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद यहां की उड़ानों को वहां शिफ्ट ना किए जाने की भी अपील करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने सीपीएस और अकाली विधायक इंद्रबीर सिंह बुलारिया का समर्थन किया और कहा कि गुरु नगरी को साफ सुथरा रखा जाना चाहिए, ना कि शहर को कूड़े के डंप में तब्दील किया जाना चाहिए। There are certainly requirement of more flights from here. I don't think you all know, because I did not know, that Amritsar gets 1 lakh tourists a day. And if we have more flights, then that can also increase. That would not only take up the revenue of the airport, but also our tourism industry in Amritsar. So we are taking time with the minister, I think this coming weekend, and we will be taking up this issue of more connectivity, direct connectivity, not indirect. Now they show a flight from here to London but via Delhi. We don't want that. We want directly from Amritsar to London, Amritsar to wherever, Malaysia or wherever it is. So that we need the assistance of Delhi, DGCA, and also the ministry, and we are going to do that now. These were the two principal things. This was our first meeting, incidentally, and it went. I'm very happy with the way it went. Suggestions have come from various sources, including private members who are here, who felt that a lot of hotel industry is coming up, so therefore we must compensate by having more tourism coming up. People who come, as you say, 1 lakh a day, normally they are day travelers. They come in the morning, go in the evening. So we have to develop other things here to try and see that they stay on. There was a suggestion that after this retreat ceremony on the Wagah border, there should be a light and sound show once this thing is also over, on partition and on other things. So that is also one of the suggestions that we are going to take up. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that I hope ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ we will be able to convince the minister, because when you have spent so much money, we are on the border, we are the largest drawer of ਜਿੰਨਾ tourism ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, and it's 1 lakh a day is a very large figure. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ certainly we must compensate with giving air travel and all ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੋਂ. Because that is their problem. What has they got to do with us? It's between the governments, both the governments. Let them sort it out. They are common partners in government in Punjab. So अपने आप sort out करना साड़ा की है. चंडीगढ़ बना दो, whatever else you want to give it name, सानू की we want to land there. That's all. And we function in a way that the revenue of the airport goes up and it maintains a good facility, and we give facilities to private. Today there was a suggestion that a hotel should be allowed to have little counters जिथे वो promotion कर सकन अमृतसर दी. Now that's a positive point also, and I think the director seems very inclined to look at that suggestion. So these are good things that are coming up. पिछले 10 सालों से एसजीपीसी के प्रधान की भूमिका अदा करने वाले अवतार सिंह मक्कड़ को आज अकाल तख्त साहिब से श्रोमणी सेवक सभा का
सम्मान दिया गया। इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब में एक धार्मिक समागम का आयोजन किया गया। इस पर इलाही कीर्तन का भी आयोजन किया गया, साथ ही धार्मिक दीवान सजाए गए, जिसके बाद 5 सिख साहिबानों की हाजिरी में ये सम्मान जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने अवतार सिंह मक्कड़ को दिया। वहीं इस मौके पर सबने मक्कड़ का सम्मान किया, साथ ही कई सिख संस्थाओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत भी की। और सदगुरु ने सेवा बख्शिश की थी, सेवक को सेवा बनाई, हुक्म पूज परम पद पाई। दोस्मावट अनुसार सदगुरु ने अपना दास जान के ये सेवावां में बख्शिश की। और सतगुरु जी के आशे अनुसार संगतां दीआं भावनावां दे मुताबिक समूह संत संप्रदावां सिख जथेबंदियां ते मैं समझदा कि सोच के मुताबिक सिंह साहिबान के पूर्ण सहयोग और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह मैंबर साहिबान एग्जैक्टिव मैंबर साहिबान के सहयोग नाल निभा सकिया। मैं एक बार फिर उन्होंने पठानकोट धन्यवाद करदा। मेरा रोम रोम ऋणी है। सतगुरु कृपा करे हौमे हंकार तो बचा के ये सेवावां मिलते रहन। मैं हौमे हंकार तो रह तो के सतगुरु जी के पावन स्थानों की सेवा कर सकां, समुची कौम नूं एक मुठ एकजुट कर सकां, समूह धार्मिक जथेबंदियां सिख संस्थावां नूं एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर सकां। ये मेरे मन की भावना है। जिथे अज के सन्मान की संगतां के प्यार की बहुत खुशी है, उत्थे मैनूं अज तुहाडे नाल ये गल साझी करके भी हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि पाकिस्तान की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पाकिस्तान के औकाफ बोर्ड वालों समुचे रूप में समूहिक रूप में फैसला करते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं श्री करतारपुर साहब के पवित्र गुरु नानक साहब जी के पवित्र स्थान की कार सेवा की बख्शिश की है। और इस संबंध में वीजे वगैरह देने बारे भी उन्होंने अथोराइज किया है। तो मैं औकाफ बोर्ड का ते पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार श्याम सिंह जी का ते उन्होंने सारे साथियों का हार्दिक धन्यवादी हाँ। और ये सेवा जिहड़ी है ये 22 तरीक नूं 22 सितंबर नूं उत्थे करतारपुर साहब विखे जाके आरंभ की जाएगी। 20 तरीक नूं इत्थों साडा जत्था जाएगा, 21 तरीक नूं MOU साइन होएगा और 22 तरीक नूं सेवा जिहड़ी आरंभ की जा सकेगी। ते महाराज जी के पावन स्वरूप ने इत्थों दिते जांदे ने, वो पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सिफारिश से ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने मुहैया कराया करेगी। और जथे भी जोड़े ने जिन्होंने मानता प्राप्त है उन्होंने सिफारिश श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कराया करेगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा अकाल पुरख का, तुहाडा प्रेस वालियां दा भी बहुत धन्यवादी हाँ। बड़ी कृपा रखी है, चंगियां रिपोर्टिंग्स कीतियां ने। अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव कमेटी ने मीटिंग दे विच फैसला किया कि सरदार अवतार सिंह जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्होंने बहुत सेवावां कीतियां, विद्या के खेत्र में भी प्रचार के खेत्र में भी, उत्थे हर पीड़ितां भूचाल पीड़ितां चाहे वह किसी स्टेट में सी, चाहे वह किसी धर्म के मनुखों के नाल होया, उन्हां दी बहुत बड़े पद्धर ते उन्हां ते जाके मदद की, जिसकी सारी दुनिया के वलों शलाघा की गई। उहदे अनुसार एग्जैक्टिव कमेटी ने एक मता पास करके कि इन्हों श्री अकाल तख्त साहिब तो सन्मान दिता जाए। उन्होंने सिफारिश से 5 सिंह साहिबाना ने विचार करके इन्हों श्रोमणी सेवक का जो सत्कार है, उपाधि है, वो श्री अकाल तख्त साहिब तो अज दी है। गुरु कृपा करे उन्होंने चढ़दी कला, नामदान, गुरसिੱਖੀ जीवन सेवा करने का बल बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। पंजाब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज अमृतसर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने हलका बाबा बकाला में एक विशाल रैली की, जिसमें कि उन्होंने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस रैली में उनके साथ कई कांग्रेसी मौजूद थे। इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी
ने जो उन पर आरोप लगाए हैं कि वे ना तो लोकसभा में नजर आते हैं और ना ही अमृतसर में, भाजपा को ये खुद ही नहीं पता कि पंजाब में क्या हो रहा है, वे केवल बोल ही सकते हैं। साथ ही उनका कहना है कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनकी पार्टी जिस तरह से बिखरेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लगाया कि तुसी ना ते पार्लीमेंट च गए ते ना अमृतसर च आए हो, उन्होंने तुहाडे ते एलीगेशन लाया जी उन्होंने रैली भी की थी अमृतसर की। देखो ऐसे हुण बीजेपी नूं कहण दा जो मर्जी कहण, जिन्ना मैं अमृतसर च गया लोगों नूं पता है, एंड जिथे ताईं मैं नहीं गया पार्लीमेंट वो भी मैं कह चुके हैं। ये पहली बार तो नहीं मैं कह रहा कि मैनू पंजाब दे नाल ज़्यादा इंटरस्ट है और असी रैलीज़ दी पूरा असी गेड़ा दिता हुआ। 37वां रैली साड़ी हो रही है, वो दे दौरान पार्लीमेंट आ गई, बट मैं ऑलरेडी डेट्स दिते हुए से तक मैं पंजाब च मैनू घूमना पिया। और होर इन्हों पता बीजेपी नूं पता है कि अमृतसर च की हो रहा है। ऐसे फजूल गल्लां करनियां विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी कोई सोचे, ये बिल्कुल गलत बात है। पर इन्हों आदत है कि बोलने इनू और अकालियां। आम आदमी पार्टी के सीनियर कौमी लीडर कुमार विश्वास की तरफ से बीते दिनों संत जरनैल सिंह पिंडरावाले के खिलाफ की गई बयानबाजी के साथ सिख संगतों में भारी रोष और गुस्से की लहर है। इस पर सिख जथेबंदियों की तरफ से लगातार कुमार विश्वास के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज हॉली सिटी ट्रस्ट के प्रधान मनमोहन सिंह टीटू की अध्यक्षता में एकत्रित हुए शहर की अलग अलग जथेबंदियों के आगुओं की तरफ से अमृतसर शहर के चौक चाटीविंड में कुमार विश्वास का पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। आज असीं इत्थे होली सिटी ट्रस्ट वालों कुमार विश्वास का पुतला साड़न वास्ते आए हैं। कुमार विश्वास ने संत जरनैल सिंह जी के खिलाफ, जो कि सिख कौम के महान शहीद हैं, जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहब तो कौमी शहीद ऐलानिया गया है, उन्हों के खिलाफ एक भद्दी टिप्पणी की है। उन्हों की तुलना एक राक्षस नाल की है, जिसका सिख संगत सख्त विरोध करती है। संगत में इस गल का गुस्सा है कि जो सिख महापुरुषों के खिलाफ भैड़ियां टिप्पणियां करे, ये असीं अगों तो भी उन्होंने लोगों को टिप्पणी करन तो ग्रेज करने लई सबक सिखाउण वास्ते इकट्ठे होए हैं। कल नूं अगर किते कुमार विश्वास अंमृतसर आया भी तो टिप्पणी के विरोध टिप्पणी का विरोध करते हुए उसका विरोध भी करांगे ते उसदे खिलाफ मुजाहरा भी करांगे, उन्होंने अमृतसर दे विच दाखल भी नहीं होण देंगे। एसजीपीसी के सदस्य और श्रोमणी अकाली दल 5 प्रधानी के सदस्यों ने एसजीपीसी के द्वारा रखे गए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को कानून की उल्लंघना बताया है। उनका कहना है कि इस मामले में वे अब अदालत के माध्यम से इसका विरोध करेंगे, वहीं इस पद को भी हटाएंगे। असीं जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों चीफ सैकटरी सरदार हरचरण सिंह नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच जिहड़ी उहदी नियुक्ति की गई है, उहदे संबंध विच असीं प्रैस मीटिंग की है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। जिहड़ी मौजूदा एग्जीक्यूटिव है, इहनूं कोई अधिकार नहीं हैगा कि ये नवीं नियुक्ति को कर सके। इस करके असीं इहनूं लीगल नोटिस जिहड़ा वो दिता है, रजिस्ट्रियां करवातियां ने सारिਆਂ ਨੂੰ, तो उहदे संबंध विच असीं जिहड़ी है ये अज प्रैस मीटिंग की है कि गैर कानूनी तौर पर है तो इहदी बर्खास्त इहनूं रखिया नहीं जाना चाहिए। ये गल है कि जिहड़ा नवा हाउस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2011 ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਈ ਮੈਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ 18% ਵਿਆਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 8 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ बोझ पाया गया। सो ये बहुत मंदभागा। निगम की आर्थिक तंगी उस समय बेपर्दा हो गई जब निगम के कमिश्नर अपने मुलाजिमों के आगे झुकते हुए खुद उनके धरने में शामिल हो गए। यही नहीं, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का रोना अपने मुलाजिमों के आगे रोया और खुद धरना लगाने की बात भी कही। आज असी सारा साडा सांझा संघर्ष मोर्चा दा डिमांड नोटिस दिता होया सी। उस संबंध च असी साडियां सारियां 16 जथेबंदियां और ਵੱਖ-ਵੱਖ जोनां तो आए सारे सफाई सेवक ते होर अहुदेदार असी सारे जाके कमिश्नर साहब नूं दिते होए समय अनुसार जाके मिले आ। अपने एजेंडे के मुताबिक साडियां 16 डिमांडां सी। पहली तो उन्होंने साडी ये मंग मन्नी आ भी हर मुलाजम नूं वध तो वध एफर्ट्स करके 7 तरीक के लागे चागे एक दिन 2 ਜਾਂ घट हर हालत तनख्वाह मिल जाया करे। इस तरह जिहड़ी तरस के आधार पर नौकरियां सी वो घट तो घट समय 15-20 दिन दे विच उन्होंने नौकरी मिल जाया करेगी। इस तो अलावा साडा एक्स ग्रेशिया जदों ही किसी साडे साथी कर्मचारी की मौत हुंदी आ उस तो अगले दिन ही उन्होंने 1 लाख रुपए का चैक उहदे घर पहुंचा करेगा। इस उहदे नाल असीं ये भी चाहया भी साडे सारे सफाई सेवक लगभग अनपढ़ परिवार होंदे आ, उन्हां नूं इक तनख्वाह दा स्लिप दित्ती जावे भी तेरी इन्नी तनख्वाह सी, इन्नी कट्टी गई, इन्ना डीए, इन्नी तेरी किश्त, ਉਹਦਾ पूरा वेरवा उन्होंने मिलिया करेगा। इसके मुलाजिम करने वास्ते असी सारी डिटेल देती है और इत्थों तक कि कल सारे ड्राइवरों की असी इंटरव्यू इसे मसले ते एक साडी कमेटी बन गई है जिते सारे ड्राइवरों का रिकॉर्ड चेक करके लिस्ट तैयार कर ली जाएगी भी ਜਿਹੜੇ सफाई सेवक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं असी उन्होंने पक्किया करावांगे। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ म्यूनसिपल कारपोरेशन ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਨ ਮੰਗਾ ਆਇਆ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਬਜਟ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਟ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 2.65 ਆਇਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 13 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 2 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ DCF ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਕੱਚੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਹਾਊਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ। तरनतारन के सरहदी एरिया गांव माड़ी उधोके में मनदीप कौर अपने मायके राखी बांधने के लिए आई थी, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति की तरफ से फांसी लगाकर मार दिया गया। महिला की लाश को खेतों में फेंककर उक्त आरोपी मौके पर ही फरार हो गया। लोगों द्वारा महिला के घर वालों को सूचित किया गया। इस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के भाइयों के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। भाई सानू पहलों पिंडों जानकारी मिली खेतों किसी की लाश पई, असीं जदों आन के देखिया वो साडी सिस्टर की बॉडी नहीं विआह नूं 8-7 महीने हो गए मिली आ ड्रेन दे लागे, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੜਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਠੱਠੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਠੱਠੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਰੀਬ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫਾ ਪਿਆ ਹੈ। विदेशों में सिख पहचान का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार हमला अमेरिका के शिकागो में हुआ है, जहां पर एक व्यक्ति को उसामा कहकर उस पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में जत्थेदार अकाल तख्त और
सिख कौम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही इस मामले में दमदमी टकसाल के मुखिया हरनाम सिंह ने भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा कि अमेरिका सरकार आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे तथा उन्हें गिरफ्तार भी करे। पर समझ के जिहड़ा उन्हां ते हमला किया जाना है बड़ी मंदभागी घटना है। इन ते सरकारां नूं वर्कआउट करना चाहिए भी ऐसा क्यों हो रहा। पिछे जे भी भोला जी का कतल होया उहदा भी हजे तक कोई सुराख नहीं मिलिया। अज फिर अटैक होया ਇਹਦਾ भी हाले तक कोई सुराख नहीं मिलिया। सरकारों को चाहिए है तो सिखां की जिम्मेवारी लैंदे हुए उन्होंने सुरक्षा यकीनी बनानी चाहिए है और अरदास करदा परमात्मा उस जिहड़ा जिन ते अटैक होया उन्होंने तंदुरुस्ती बख्शण। अमेरिका के अंदर एक सिख नूं गोली का निशाना बनाया गया, ये बड़ी दुखदाई घटना है और ये नस्ली हमले बाहरले मुल्कां दे विच भी सिखां दे उत्ते कीते जा रहे हैं। इहदे लई हिंदुस्तान की सरकार नूं बड़ी गंभीरता दे नाल ये मसले लैके विदेशों दी सरकारां तक पहुँच करनी चाहिए है। सिखां दे हमलिਆਂ ਨੂੰ रोकण लई कोई विशेष योजनाबंदी करन दा प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए है। बहुत ही ये चिंता का विषय है। काफ़ी लंबे समय तो अमेरिका दे विच सिखां दे उत्ते हमले हो रहे ने और कुछ दिन पहलों ही अजे भोले का कतल होया जिसका अजे तक कोई पता नहीं चलिया है। फिर एक नौजवान के उत्ते गोली चला दी गई जिसका अजे तक कोई पता नहीं है। USA की सरकार नूं चाहिए है कि उन्हां कातलां नूं जिन्हां दीयां घिनौणीਆਂ कार्रवाइयां ने जल्दी तो जल्दी शनाख्त करके, क्योंकि बाहरलियां जिहड़ियां पुलिसां ने बहुत ही सुचेत ने और पर इन्हां तो बहुत ढिलाई नज़र आ रही है। इस करके असीं कहना चाहांगे कि जल्दी तो जल्दी जिहड़े कातल ने उन्हां नूं फड़ के सज़ावां दित्तियां जाण, कानून के अनुसार उन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाए और समुचियां सिख संगतां जथेबंदियां अपनी पहचान बनाउण दे वास्ते गुरुद्वारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ बाहर निकल के मनुखता की सेवा करन, दुखियां दर्दां की सहायता करन, जिथे भी किते लोड़ पैंदी है किसी की मदद की उत्थे मदद करन ताकि साडी जिहड़ी कौम है आल वर्ल्ड दे विच इसदी एक वखरी पहचान बन सके कि ये किसी का बुरा नहीं चितवदे, किसी दे नाल धोखा नहीं करदे, ये सारिਆਂ ਨੂੰ इंसाफ पसंद ने, सारिਆਂ दी ये सहायता करनी लोड़दे ने। इस करके सिख जथेबंदियां नूं भी गुरुद्वारा कमेटियां नूं भी इस पासे अपनी पहचान बनाउण वास्ते वड्डे तो वड्डे उपराले करने चाहिए ने और सरकारां ते दबाव बनाउणा चाहिए है कि वो जिन्हां ने भी ये घिनौणी कार्रवाई की नौजवान ते गोली चलाई है जां पहले भोले का कतल किया है उन्हां कातलां नूं लभ के कटहरे विच खड़ा किया जाए। अमृतसर पुलिस ने शहादा इलाके में हुई 6 लाख की लूट की वारदात को हल करने में सफलता हासिल की है। इस पर पुलिस ने 4 आरोपियों पर आपराधिक मामला दर्ज किया है जिसमें कि 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस पर पुलिस का कहना है कि बाकी 2 को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही पुलिस का कहना है कि इस गिरोह ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, इस मामले में जांच की जा रही है। कल एक हादसा हुआ था अपना छाटा में जिसमें लूट हुई थी 5,80,000 रुपए की तकरीबन, जिसमें एक जो पैसे जमा कराने जा रहा था बैंक में मुलाजिम जगदेव गैस एजेंसी का, उसको बीच में रोक के मोटरसाइकिल वालों ने इंटरसेप्ट किया और पीछे से आके उस पर दातर से हमला करके पैसे खो के ले गए। फिर टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करके हमने उनको जीरोइंग इन किया तो उनमें एजेंसी का एक मुलाजिम गोपी भी शामिल होना पाया गया और बाकी एक दूसरा लड़का जो वडाली का रहने वाला है उसका नाम भी गोपी है। इन दोनों को हमने अभी तक अरेस्ट कर लिया है और इनके पास से रिकवर हो गए हैं तकरीबन 3.5 लाख रुपए। टोटल 4 लोग शामिल हैं, 2 लोग अभी हमारी पकड़ में बाहर हैं, जल्दी ही पकड़ लेंगे उनको। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन आई है उस पर एक पर्चा दर्ज हुआ है और वैसे भी वो लूट खो करने में माहिर है। पिछले 3-4 दिन में जो गोपी ने बताया है कि उसने 1-2 वारदातें और भी की हैं शहर में। अभी तक यही पता चला है कि वारदात करने आता था, वारदात की बूटी को लेके जाता था लुधियाना, यहाँ का भगौड़ा है वो, अमृतसर पुलिस का भगौड़ा है। क्रिमिनल्स तो लूट करने के बाद कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कपड़े ही खरीदेंगे। नशे का सामान नहीं पाया गया लेकिन माने हैं कि हम नशा करते थे। आरोपियों को टिप गोपी ने दी। गोपी एजेंसी का एक मुलाजिम है, ठीक है, जो एजेंसी के पास शिकायत थी कि ये सिलेंडर डिलीवरी के साथ साथ नशा वगैरह भी करता है। 394 रेड विथ 34 IPC।
कैदियों और हवालातियों से लबालब भरी केंद्रीय जेल अमृतसर में मौजूद कैदी इस समय खारिश की बीमारी से ग्रस्त हैं। ये जानकारी आज जिला और सेशन जज की अगुवाई में जेल में लगाए गए एक मेडिकल कैंप के दौरान दी। मेडिकल जांच के बाद सेशन जज की ओर से सभी कैदियों की जांच कर उनका उचित उपचार करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं जेल के सुपरिटेंडेंट ने इस कैंप को लगाए जाने पर सेशन कोर्ट के न्यायाधीश का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप लगाने से कैदियों की सेहत भी सही रहेगी। जिवें कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ओवरक्राउडिंग ਦੀ बहुत समस्या है। जेल ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 1500-2000 कैदियों की कैपेसिटी है, लेकिन ਇੱਥੇ इस वक्त 4000 कैदी जो रह रहे हैं, इस करके इन्हां ਨੂੰ काफ़ी खारिश की प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम असी सैशन जज साहब नाल इत्थे विजिट किया जेल दे विच लास्ट वैडनसडे, तो सुपरिटेंडेंट जेल जी शर्मा जी जो हैं सानू उन्होंने दस्सिया सी कि कैदियों को काफ़ी खारिश की प्रॉब्लम है, इस लई कैंप लवाया जाए। तो असी अज सैशन जज साहब की अगवाई के हेठ अज जेल दे विच मैडिकल कैंप लगाया है, जिस दे विच गुरु रामदास हस्पताल के 5 डॉक्टर्स आए हैं। इस तो इलावा संधू हस्पताल वाले ने भी 2 डॉक्टर्स भेजे हैं जो कि जनरल फिजिशियन हैं। इस तो इलावा जो डॉक्टर शौकीन का आई क्लीनिक है उत्थों भी उन्होंने आई स्पैशलिस्ट भेजे हैं, ईवन आई सर्जन भी आए हुए हैं। अज असी अप्रॉक्सीमेटली 2000 के करीब पेशेंट्स चैक करवाए हैं तो उन्होंने मैडिसिनस भी प्रोवाइड की हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो उपराला है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वालों किया गया है। यह उपराला डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वालों मानयोग सैशन जज साहब साडे गुरबीर सिंह जी जो कि साडे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, उन्हों की रहनुमाई हेठ अगवाई हेठ दिशा निर्देश मुताबक किया गया है। तो यह असी कहते हाँ कि अज सिर्फ एक बार चैक करवा के मैडिसिनस दे के अज ये काम खत्म नहीं होया, असी इस अगे हर महीने फॉलोअप भी करांगे। मानयोग जिला के सैशन जज दे नाल मैडम ग्रीस सैकटरी सर्विस लीगल अथॉरिटीज़ अमृतसर वालों लास्ट वीक जेल का दौरा किया गया सी। दौरे दौरान वक्-वक् बंदियां वालों वक्-वक् समस्या जिहड़ियां मानयोग सैशन जज साहब तो सैकटरी सर्विस लीडर नूं दसिया गई। वो वेखण च आया है कि जी मेजर जी डिजीज़ है जेल के वो स्कैबीज से स्किन इन्फैक्शन हैगी है। इस मद्देनज़र रखते हुए सैशन जज साहब ने एक साडे नाल रल के एक प्लैनिंग बनाई कि क्यों ना इस जेल के एक मैडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए। ये बड़ी बड़ी एफर्ट्स है मानयोग सैशन जज साहब की कि जुडिशल साइड वालों फर्स्ट टाइम जेल के एडा बड़ा कैंप लगवाया गया है। अज एक मैगा कैंप ऑर्गेनाइज जेल में किया गया है जो मैनू सर्विस लीगल अथॉरिटीज़ ने मैडम नीश ने दसिया है कि मानयोग सैशन जज साहब को कोई अचनचेत काम पैन से उन्होंने बाहर जाना पाया है, पर उन्होंने ये ड्रीम प्रोजैक्ट सी अज कि सारे तमाम बंदी जो जेल में बंद हैं उन्होंने सारे का चैकअप किया जाए और उन्होंने दवाइयां दी जान। इस नाल अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जोड़े नुमाइंदे NGOs है वो सूँ दवाइयां प्रोवाइड की हैं। लाइफ लाइन जोड़ा हॉस्पिटल है उस डिफरेंट पार्टीज़ जड़ियाँ डिफरेंट स्पैशलिस्ट आई सर्जन के स्कैन जोड़े स्पैशलिस्ट हैं उन्होंने जेल से विजिट किया है और वक्-वक् बंदियों उन्होंने चैकअप करके दवाइयां प्रोवाइड की। अज तकरीबन 2000 बंदी जो मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ मैडम ग्रीस जो सर्विस लीगल अथॉरिटीज़ सैकटरी हैं उन्होंने अपनी हाज़री खड़े होकर तमाम बंदियों का चैकअप करवाया है। ये बड़ी बड़ी एफर्ट्स है जुडिशियल जोड़ा डिपार्टमेंट उस उपर जिन्होंने एड्डी वड्डी एफर्ट्स लैके तमाम बंदी जड़े हैं उन्होंने मुश्किलों हल किया। फरदर मैं रिक्वेस्ट कराँगा मैडम जी नूं कि आने वाले समय दे विच भी इस तरह के कैंप अगर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो जेल के अंदर कोई भी बंदी किसी बीमारी तो रहत नहीं होगी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिवस के संबंध में जीवन जुक्ति समागम 9 सितंबर बुधवार को रात गुरुद्वारा डेरा संत ज्ञानी अमीर सिंह जी बाजार सत्तोवाला नानक मंडी में करवाया गया। इस मौके पर शहर के और अलग अलग शहरों से आए रागी जत्थों ने गुरु जी की इलाही बाणी का गुणगान किया। इस मौके पर भाई दविंदर सिंह खालसा सुहानेवाल, ज्ञानी जसविंदर सिंह मोहाली वाले, भाई राजेंद्र सिंह जी कल्टर खालसा यतीम खाना, भाई प्रितपाल सिंह जी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वाले, भाई जसबीर सिंह जी पंजाब एंड सिंध बैंक, राजपाल सिंह, सरदार गुरमुख सिंह बिट्टू, शरणजीत सिंह जी शब्द कीर्तन नाम सिमरन सत्संग सभा अमृतसर और मैनेजमेंट श्री दरबार साहिब सिंह के सहयोग से करवाया गया। शब्द कीर्तन नाम सिमरन सत्संग सभा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਇਲਾਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵਤ ਸਮਾਗਮ ਜੋ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ। ਬੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾ ਕਰੀ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਆਓ ਪਰ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमृतसर की इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मोहाली एयरपोर्ट पर शिफ्ट नहीं करने की करेंगे अपील, कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। आम आदमी पार्टी के सीनियर कौमी लीडर कुमार विश्वास का शहर वासियों की तरफ से फूंका गया पुतला। अमेरिका में सिख व्यक्ति पर हुए हमले की सिख कौम ने की कड़े शब्दों में निंदा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।